Across Ludhiana, support takes different forms. Safer learning environments in government schools. Accessible healthcare for families who need it most. Skill training that leads to livelihood. And public spaces that improve everyday life. आपके लिए CSR क्या मायने रखता है? नाइनटीन 1955 से मैं इस शहर से जुड़ा हूँ, तो मेरी ये हर वक्त यही तमन्ना रहती है मैं इस शहर को ऊंचा उठाऊँ और जो भी हो सके इसके लिए करूँ। और पर्टिकुलरली एजुकेशन और अपना जो हेल्थ है, वो दो सेक्टर्स ऐसे हैं जो एक नेगलेक्टेड है, हर स्टेट में नेगलेक्टेड होते हैं। तो हमारा ये फोकस है कि हम इसको जितना भी ऊंचा से ऊंचा उठा सकें उठाएं। जो चीज़ हम चीज़ सोसाइटी से लेते हैं तो उसको 10 गुना वापस करना चाहते हैं। For us, CSR truly means uplifting lives, especially for those who start at a disadvantage. It's about giving every individual a real, fair chance to thrive. ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7 ਕਮਰੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜੋ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਏ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅੰਡਰ CSR ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ हैप्पी फोर्जिंग कंपनी के CMD सर श्री परितोष गर्ग जी ने एक बहुत वधिया ते निवेकला उपराला किया। यहाँ पर तो बहुत कुछ लगा है, कैमरा भी लगा है, बड़ी सारा पंखा भी लगा है, बच्चे के लिए बड़ा बड़ा LCD लगा है, बच्चे सब कार्टून भी देखता है, उसी के चलते भी पढ़ता भी है। बच्चों को बहुत शिक्षा मिल रहा है, मैडम कुछ पढ़ा रही है, बच्चे सब TV पर भी देख के बहुत कुछ पढ़ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है बच्चे को पढ़ाने में इस स्कूल में। दो या 3 यहाँ पे रूम थे, सिर्फ एक टॉयलेट था बच्चों के लिए। बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आती थी, ज़्यादा भीड़ हो जाती थी। अब कुछ नहीं है, अब काफ़ी कंफर्टेबल है, बाथरूम भी सही है, ऊपर भी बाथरूम अब है और स्टेज भी काफ़ी अच्छा बन गया है। ये स्कूल ऐसे है जो कि यहाँ के प्राइवेट स्कूल में भी इसी सुविधा नहीं मिलती जितने इसके सरकारी स्कूल में मिलती है। ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੌਪ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। In Kanganwal specifically, the very first change that stood out to us was the transformation in infrastructure. We moved from a situation where children were sitting on the floor in old, outdated classrooms to a building with a state-of-the-art facility with smart classes and modern amenities. That single upgrade was massive. It immediately boosted enrollment and, more importantly, rebuilt parents' trust in the school. हैप्पी फोर्जिंग्स कंपनी जो है वो CSR में बहुत ज़्यादा स्कूल्स की तरफ बहुत ध्यान देती है। हमने उनको बताया कि ऐसे प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को बिठाने में, तो हमें हमारे वरांडे जो है रिपेयर करवा दो। सर कहते हैं कि मैम क्या बात करते हो आप, वरांडे ठीक करवाने हैं, वरांडियां दी की लोड़ है ठीक करवान दियो, वो तो पिछे वाले जेडे रूम्स है वो भी थोड़े 60-70 साल। वो कहते हैं वो कभी भी वो भी गिर सकती है, हमें पता नहीं उसका बेस कैसा है क्या है। आप फंड्स की चिंता मत करो, हमें जगह दो, हम नई जगह पे पूरा ब्लॉक आपको बना के देंगे। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਕਮਰੇ ਮੰਗੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 2 ਮੰਜ਼ਲੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
अब पिछले साल से ये हमारी ये वाली जो बिल्डिंग है ये अनसेफ डिक्लेयर्ड है, क्योंकि यहाँ पे बहुत पुरानी बिल्डिंग है और इनमें बच्चों को बैठाना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं था। ਇੱਥੇ ਛੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੜੇੜਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਖੁੱਲੀ ਡੁੱਲੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਬੜੇ ਨਵੇਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, बहुत वधिया ने, नवीं LCDs लगियां ने, बहुत फैसिलिटीज ने। जितनी भी हमने स्कूल्स बनाए हैं वो एट पार विद दी अदर स्टैंडर्ड स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स। तो उससे क्या है, बच्चे को मन भी लगता है पढ़ने के लिए और उसके बाद बच्चा गुड फील करता है जब को बैठकर अपना पढ़ता है, तो उसको कोई इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आता। तो ये हमारा जो है ना, इसके अंदर विजन काफ़ी बड़ा है भी, और भी हर साल 1 या 2 स्कूल लेकर उसको अपग्रेड करें। The goal is not to replace government institutions. The goal is to strengthen the environment so the institution can serve children better. कि ये जो सेंटर है ये किडनी पेशेंट सेंटर है, जिसको गुर्दे ख़त्म हो जाते हैं, उनकी डायलिसिस होती है और ये परिवार डायलिसिस करा के अस्पतालों में बिल्कुल ख़त्म होया होता है। तो यदि किसी मरीज़ की 4 डायलिसिस ना हो तो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो हमारा मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जीवन दान मिले। पेशेंट का तकरीबन 15 ਤੋਂ 20 हज़ार रुपए पर मंथ खर्चा हो जाता है, बट ये ਜਿਹੜਾ डायलिसिस सेंटर आ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पेशेंट ਨੂੰ बहुत बेनीफिट आ, क्योंकि ਇੱਥੇ बिल्कुल भी कोई कैश काउंटर नहीं हैगा। इंसान को जीने के लिए पानी ज़रूरी है, उससे बढ़िया ये मशीन है भी, उससे उसके मुकाबले में ही है। अगर डायलिसिस होगी तो जीवन है, वरना नहीं है। ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਸ NGO ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅਦਰ ਆਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਈਵਨ ਮੇਰੇ ਟੱਚ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਏ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਥੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚਾਹੇ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਸਟ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਜਾਤੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। सबसे पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे ये कि डायलिसिस न्यू लगता है, ये ज़्यादा हेल्प हो जाती है और स्टाफ भी बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा इनका नेचर है, सबसे अच्छे से बात करते हैं। और अल्लाह का भी शुक्र है और NGO वालों को भी शुक्र है कि मतलब यहाँ पे फ्री में इलाज हो रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ सभी का जिन्होंने इतना अच्छा सेंटर खोला, ताकि हम जैसे पेशेंट जो अफोर्डेबल नहीं है वो अच्छे तरीके से यानी कि अपना इलाज करवा सके। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको राशन की दिक्कत है, उनको राशन भी मिलता है, किराया भी मिलता है, सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, एक फैमिली मेम्बर जैसे। जो डायलिसिस मरीज ज़रूरतमंद होते हैं उनके बच्चों के एजुकेशन, किराया, बिजली का बिल, आने जाने का किराया वो भी फ्री है। इसीलिए पूरे इंडिया में छोड़ो पूरे वर्ल्ड में ऐसा डायलिसिस सेंटर नहीं है। और ये सब योगदान हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन, हमारे जो दानी सज्जन हैं, जैसे कि हमारा ये यूनिट हैप्पी फोर्जिंग के नाम से है। So molecular genetics lab is as of now being the utmost importance in DMC for all the clinicians, because this is a research lab and the purpose of this lab is that we provide all diagnostic and highly specialized tests that help all clinicians, especially from cancer, pediatrics and gynecology. ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ DMCH ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੈਪੀ ਫੋਰੇਜਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਮਿਡਲ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे पास जो पेशेंट्स आते थे पहले हम
सैंपल्स बाहर आउटसोर्स करते थे, लेकिन अब हम DMCH में इन हाउस ये सभी सैंपल्स प्रोसेस करके पेशेंट्स को रिपोर्ट दे रहे हैं. सो विद दिस वी बिकॉज ऑफ दिस अवेलेबिलिटी ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इन DMCH नाउ वी वांट टू थैंक हैप्पी फॉर्जिंग्स लिमिटेड वेरी मच. थैंक यू. Skill development works when training is practical, consistent, and linked to real outcomes. It creates employability. It builds confidence. It supports dignity through livelihood. The objective is not short-term help. The objective is long-term ability. हमारी जो मुलाकात है हैप्पी फोर्जिंग के CMD परितोष गर्ग जी से हुई, उन्होंने हमें पहले दिन कह दिया कि दीदी मैं आपके पीछे हूँ, आप चिंता मत करो, जो आप दुनिया के लिए सोसाइटी के लिए करना चाहते हो आप खुल के करो. जैसे ही स्टूडेंट हमारे प्रीमिसेस के अंदर आता था तो उनका ना एक भाव होता था, वाह फ्री में हम यहाँ पढ़ेंगे. अब घर बैठने का मन ही नहीं करता कि घर पे रहें, ऐसे लगता है कि वहाँ पे ही चले जाएं, बस छुट्टी ना करें कोई भी. कि हमारा जो विज़न है उसको इतना बढ़ा दें ताकि हम सोसाइटी की जितनी लड़कियां हैं जिनके माँ बाप 10th के बाद या 10+2 के बाद उनको पढ़ा नहीं सकते, उनको और खुल के पढ़ाएं. हम मेरा बचपन में शौक था कि मैं पार्लर का कोर्स करूँगी. पहले 2 रूम था, ग्राउंड था, कुछ भी नहीं था, लेकिन आज तो बहुत अच्छा कंपनी ने बना दिया, बहुत अच्छी सुविधाएं दे दिया है. हम इसलिए बहुत बहुत थैंक यू कंपनी को भी कहते हैं कि जो हम महिलाओं के लिए इतना अच्छा कदम उठाएं. For the last approximately 20 years, I used to come to this park for walking. I'm thankful to Mr. Paritosh Garg. He has maintained, you just see the park. It is one of the beautiful parks in Ludhiana. See the greenery, see the track. This is one of the best park of Ludhiana, and a lot of cleanliness. There are gardeners who are cleaning everything in the morning. People are coming here. जो कोई प्राणायाम कर रहा है, कोई योग आसन्स कर रहा है, लोग वॉक कर रहे हैं. And then ultimately, you've seen this place. People sit here across a cup of tea, coffee. Since Happy Forging took it over, they've done a wonderful job. बहुत अच्छा बना दिया है park. It's much nicer, cleaner, much more green, and it's a very cozy and nice environment. So I really love walking here. और पिछले 10 सालों में मैं देखती हूँ इतना चेंज आया इस पार्क में, और इसमें ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है कि हम यहाँ पे 10 बजे तक भी सैर करते रहें तो हमें धूप नहीं लगती. At Happy Forgings Limited, we started in the year 1979 with the forging of bicycle pedal arms. Today we are the second largest machining company in India and the third largest forging company with installed capacity of almost 150,000 tons per annum. We are the second largest manufacturer of diesel engine crankshafts in the country, catering to sectors like commercial vehicles, passenger vehicles, farm equipment sector and industrials. Within industrials, we supply for heavy gensets, heavy engines which are used to power data centers, oil and gas, wind operations and railways. Happy Forging. Happy Forging. Happy for. Happy for. Happy Forging. Happy Forging. So Happy Forging. Happy Forgings Limited.